For advertisements or advertising campaign, what we are supposed needed? We needed our objectives. There are two objectives in the advertisement. One is your communication objective, second is your sales objective. दो ही objective हमें चाहिए, communication and sales. When you are good in communication, definitely you will be good in your sales. अगर आपने communicate ही नहीं किया, what is advertising? Advertising is a communication to the customers, है ना? तो अगर आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ, देन योर सेल्स विल बी जीरो. So both are interrelated. Communication and sales both are interrelated. Now what are these communication objectives? For this we will be seeing Dagmar model. Dagmar, Dag क्या है? Define advertising goals for measuring advertising results. क्या करेंगे हम लोग? पहले गोल्स को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे. For that we need awareness, comprehension, conviction and action. सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास? Awareness. People should be aware of your brand. People should be aware of your product. Which products are available in the market? For example, if I want to purchase a mobile phone, so I should know which all are the brands available in the market. Isn't it? Then comprehension. What is the price? And what are the features? Then your conviction, your convincing capacity. Advertisements kya hai? Advertisements, we are convincing the customers to purchase the goods directly or indirectly. Next is your action. If the customer purchase the particular brand, that means you have the positive action. If the customer does not purchase the your goods or brand, you have negative action. ठीक है? So वो कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड करेगा? फिर अगेन सेल्स पे. एक्शन कैसे पता चलेगा कितना आपका सेल हुआ है? मोर द सेल्स, पॉजिटिव्स आर द साइन, लेस द सेल्स, नेगेटिव्स आर द एक्शंस. ठीक है? So the first model is your Dagmar. Define advertising goals for measuring advertising results. Now, who has developed this model? This model was developed by Russell Collet in 1961. This you will have to keep in mind. Who has developed Dagmar model? Dagmar model was developed by Russell Collet in the year 1961. ठीक है? Why? To communicate to the people. According to Dagmar, a sale must carry the potential customers through 4 stages. कौन-कौन से 4 stages है? जो मैंने अभी आपको 4 स्टेजेस दिखाए थे, अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, कन्विक्शन एंड एक्शन. हर एक एडवर्टाइजमेंट्स को क्या करना पड़ेगा? They will have to process with these 4 stages. Which are that 4 stages? First is your awareness, then your comprehension, third is your conviction and last is your action. ठीक है? So अगर awareness proper है तो action positive होगा. Starting from the first, अगर awareness ही proper नहीं है तो obviously your action will be negative. ठीक है? So all these are interrelated. Next, how does advertising works? For communication we have 4 modules: AIDA model, Dagmar model, hierarchy and FCB grid. तो जिसमें से AIDA हमने किया है, सेकंड मॉडल हम लोग देखेंगे वो है Dagmar मॉडल. Now what is this Dagmar approach? Dagmar approach is the task measuring ad effectiveness as well as the objective of the goal of advertising. What it is approach to the task of measurement. What are we going to measure? See, when we say communication, communication cannot be measured in liters, it cannot be measured in meters, it cannot be measured in kg. कर सकते हो? मैंने इतना किलो बात किया. बोल सकते हम लोग ऐसे? नहीं ना, कि मैंने इतना लीटर बात किया. कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना. हम लोग मेजरमेंट फिर कैसे मेजर करोगे? When we are saying measuring, how are we going to measure? See, कैसे measure करोगे? Your responses. If I am talking to you and you are responding to me, that means वो proper communication है. If I am talking to you and you are not responding me, that means you have either you have not understood or either you don't want to speak. ठीक है? दो ही चीज है, या तो हमें समझ में नहीं आता इसलिए हम रिप्लाई नहीं करते, या हमें रिप्लाई देना नहीं है. लेकिन अगर आपने रिप्लाई दिया तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या हुआ है? कंप्लीट हुआ है. दैट मींस वी कैन मेजर इट इज कंप्लीटेड. ये मेजरमेंट है.
ठीक है, किलोस और लीटर्स में मेजर नहीं कर सकते। In 1961, Russell Collier wrote a book under the sponsorship of the Association of National Advertising called, ठीक है, उसमें Russell Collier ने क्या किया था? He has written a book on communication objectives. What all are the communication objectives for the people? चालू है ले तो रहा हूँ क्या है? Dagmar model. Defining. What is the full form of Dagmar? Defining advertising goals and measuring advertising results. ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम? Define करेंगे what is my prospect of advertisement, why I am advertising. Because what we advertise either goods, either services or ideas. What we advertise either goods, services or ideas. ठीक है, what is the purpose for this? If I am advertising a good, what is purpose behind that? If I am advertising service, what is the purpose behind that? Or if I am advertising idea, what is the purpose behind that? ठीक है, क्या पर्पस है मेरा एडवर्टाइज करने का और क्या वो कंप्लीट हुआ है, whether it has reached to the people or not, ये मेजर करेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि लोगों तक पहुंचा है या नहीं? When we get the responses. For goods, people will purchase your goods. For services, people will prefer your services. For ideas, they will recommend your ideas. तब जाके पता चलेगा कि हाँ हमने प्रॉपर कम्युनिकेशन कंप्लीट किया है। Now this is communication task. As I said, there are 4 steps. First, we should be awareness, then comprehensive, conviction, and action. Next, Collier proposed 4 stages. What is awareness? Making the consumer aware of existing brand or company. दो ही चीजें हमें aware करनी है, either your brand, either your company. Goods कैसे सेल होगा और सर्विसेज कैसे सेल होगा? Either by the name of brand or by the name of company. तो ये दोनों चीजों का क्या होना चाहिए? Awareness. For example, Dairy Milk. ठीक है, so when we say Dairy Milk is a brand. इसका कॉर्पोरेट कौन है? कैडबरी। ठीक है, तो कुछ चीजें हम लोग कैडबरी से बोलते हैं और कुछ सेम कंपनी का हम लोग कुछ ब्रांड से प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्लर्स है ना, तो कैडबरी एक्लर्स करके तो नहीं बोलते आप लोग, सिर्फ एक्लर्स। कैडबरी डेयरी मिल्क तो नहीं बोलते हम लोग, सिर्फ डेयरी मिल्क बोलते हैं। तो यानी कि सेम हमें पता है कंपनी कौन सी है और ब्रांड कौन सा है, बट what is more important, what has communicated to the people, that is important. कैडबरी कम्युनिकेट नहीं हुआ है नाम, लेकिन डेयरी मिल्क कम्युनिकेट हुआ है। जियो कार्ड किसका है? विद कॉर्पोरेट रिलायंस, लेकिन रिलायंस जियो कार्ड आप बोलते हो? नहीं बोलते ना हम लोग, क्या बोलते हैं? जियो कार्ड। सेम रिलायंस स्मार्ट है, रिलायंस फ्रेश है, तो ये हम लोग किसके साथ बोलते हैं? कंपनी के नाम के साथ, कॉर्पोरेट के साथ। क्यों? क्योंकि वो उतना ही आपके साथ क्या हुआ है? कम्युनिकेट हुआ है। ओके, क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल यू, when I say that you are in Sri Narayana Guru College of Commerce, ठीक है, यहाँ पर स्टैंडर्ड मैटर नहीं करता है, क्या मैटर करता है? which college you belong। ठीक है, फिर हम लोग अंदर बाइफर्केशन के लिए आएंगे। ठीक है, जैसे नेबर्स है आपके नेबर्स क्या बोलेंगे? अरे वो 13th में पढ़ते हैं या 14th में पढ़ता है, इतना ही उनको मालूम है कि हाँ सो एंड सो पर्सन या सो एंड सो चाइल्ड इज स्टडीइंग इन SYBCom। अब वो SYBCom करके नहीं बोलते, एक्चुअल टर्म क्या है? वो SYBCom है ना, सेकेंड ईयर इन बैचलर ऑफ कॉमर्स, लेकिन वो क्या बोलते हैं? अरे 14वीं में पढ़ता है ना, या सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर बहुत कम बोलेंगे, नॉर्मल टोन में हम यही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उतना ही अवेयरनेस है, प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। सो ये इंपॉर्टेंट है, हाउ you are awareing to the people about your brand, about your company. Comprehensive, developing an understanding of what the product is and what it will do for the customer. Comprehensive क्या है? We will have to develop what are the benefits of your product, of your brand. When I say McDonald products are sold by the brand, जबकि हमें पता है उसका गुड्स जो है फर्मेंटेड है, it is not good for the health, फिर भी हम प्रेफर करते। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड है। That is what the comprehensive is. How good you are to develop yourself. Next, conviction, developing a mental disposition in the consumer to buy the product. क्या है?
हम लोग एक प्रोस्पेक्ट को बायर में कन्वर्ट करेंगे. आई हैव सेड यू सो मेनी टाइम्स, एवरी कंज्यूमर इज अ प्रोस्पेक्ट. पहले क्या होता है हमारे लिए, सिर्फ प्रोस्पेक्ट है, और हमें क्या करना है, उस प्रोस्पेक्ट को बायर में कन्वर्ट करना है. दैट इज व्हाट इज द कन्विक्शन इज. whether the customer is purchasing your goods or not, he should have the positive awareness, he should have the positive side. ठीक है. as I said, ये कितने सारे ब्रांड्स हम लोग देखते हैं ना, लेकिन हम लोग यूज क्या करते हैं, हार्डली 1 और 2 ब्रांड्स. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग दूसरे ब्रांड्स के बारे में नेगेटिव बोलते हैं. नेगेटिव क्यों नहीं बोलते? क्योंकि फ्यूचर में कभी हमें उसको परचेज करना है या यूज करना है ना. जैसे फॉर एग्जांपल आप एक शैम्पू यूज कर रहे हो, ठीक है, तो कंटिन्यू और फ्रीक्वेंटली यूज करते करते आपको कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, तो हम क्या सोचते हैं, वी विल चेंज, है ना. आपने सेकंड यूज किया, उसमें भी आपको कोई फर्क नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन वी विल गो फॉर दी थर्ड चॉइस. तो इस ऐसा अगर पर्टिकुलर शैम्पू लेंगे तो शैम्पू के 100 ब्रांड्स है. Though we may not be preferring it, but we are, at the same time we are not having any negative points for that. है ना, नेगेटिव मेंटालिटी नहीं है. परफ्यूम फ्रेग्रेंस के ऊपर डिपेंड करता है और कुछ ब्रांड से सेल होता है. अगर सपोज हमने ब्रांडेड भी ले लिया लेकिन हमें फ्रेग्रेंस नहीं अच्छा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे. सेकंड वन भी नहीं अच्छा लगेगा तो फिर से क्या करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे. ओके, सो दैट इज व्हाट इज योर कन्विक्शन. डेवलपिंग द मेंटालिटी, developing the good sign of your product in the minds of your target customer. Next is action, getting the consumer to purchase the product. Action कब complete होगा आपका, जब कस्टमर ने आपका गुड्स खरीदा. नहीं खरीदा तो आप फेलियर हो, आपका एडवर्टाइजमेंट फेलियर. चाहे आपने कितना भी पैसा क्यों नहीं लगाया हो, कितना भी एक्सपेंसिव आपका एडवर्टाइजमेंट क्यों ना हो, लेकिन वो क्या होगा, फेलियर. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका सेल्स पर्सन, व्हेन वी गो टू द मार्केट, सेल्स पर्सन कन्विंस करने की कोशिश करता है. द सेल्स पर्सन फॉलो दिस थियोरेटिकल मेथड. अब आप कनेक्ट करो, हम प्रैक्टिकली देखते हैं लेकिन वो थियोरेटिकली अभी इसको कनेक्ट करेंगे. पहले वो क्या करता है, हमें अवेयरनेस देता है, व्हाट ऑल गुड्स आर अवेलेबल इन हिज शॉप, है ना, कौन कौन सा ब्रांड है, सबके बारे में वो हमें अवेयरनेस देगा. फॉर एग्जांपल यू गोइंग टू परचेस अ क्लोथ, तो जब हम क्लोथ शॉप में एंटर करते हैं, फ्लैशबैक में जाओ, ठीक है. सब लोग अपने को क्या करना है, विद इन अ मिनट, एक 10 सेकेंड्स दे रही हो, अपने आप को मार्केट में लेके जाओ. और कहाँ लेके जाना है, जिस शॉप में आप क्लोथ्स खरीदते हो. ईच वन ऑफ यू गो इन दैट इलस्ट्रेशन, गो इन दैट इमेजिनेशन. ठीक है, एक पर्टिकुलर शॉप जहां से आप रेगुलर क्लोथ्स खरीदते हो, आ गया सबके माइंड में. तो वो क्या करते हो, सबसे पहले जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, we go, we enter and we ask some clothes. या कोई डिजाइन हमें पसंद आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस स्टैचू पे से या उस कैटलॉग पे से निकाल के बताने के लिए, है ना, वो हमें बताता है. फिर हमें कन्विंस, शायद पसंद आता है, शायद नहीं भी पसंद आता, तो सेल्स पर्सन क्या करता है, इमीडिएटली द सेल्स पर्सन विल स्टार्ट गिविंग दी अवेयरनेस, है ना. ये पसंद नहीं आया आपको, ठीक है, हमारे पास ये पर्टिकुलर गुड्स भी अवेलेबल है, ये सो एंड सो ब्रांड भी अवेलेबल है, निकालना स्टार्ट कर देता है. फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप पे आता है वो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव, यानी अगेन वो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देना शुरू करेगा. आपको रेड कलर नहीं पसंद है, येलो ले लो, येलो नहीं है व्हाइट ले लो, व्हाइट नहीं है ब्लैक है. तो ये आपको स्टार्ट करेगा कॉम्प्रिहेंस करना. फिर क्या करेगा, कन्विंस. प्रॉब्लम कहाँ आती है, ठीक है, आपने कलर सेलेक्ट कर लिया, क्लोथ सेलेक्ट कर लिया, अब प्रॉब्लम आएगी आपकी प्राइस पे, है ना. ये एक पार्ट तो क्लियर कर लिया उसने, आपकी मेंटालिटी सेट कर दी. फिर हम आ जाएंगे प्राइस पे, फिर वहां पे थोड़ा सा बार्गेनिंग स्टार्ट हो जाएगा. समहाउ द सेल्स पर्सन विल स्टार्ट टू कन्विंस. अगर आपको लगता है वर्थ है तो आप क्या करोगे, पर्टिकुलर क्लोथ को परचेज कर लोगे, नहीं तो क्या करते हैं हम लोग, रख के आ जाते हैं. तो अगर आपने वो खरीद लिया तो वो पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया, एक्शन कंप्लीट है. अगर आपने नहीं खरीदा तो क्या हो गया, फेलियर. फिर उसके लिए वो सेल्समैन ने 10 मिनट दिया हो, आधा घंटा दिया हो या 1 आवर, इट इज अ फेलियर. कोई कोई गुड्स 10 मिनट्स में सेल हो जाता है, कोई का गुड्स घंटों ले लेते, सेल नहीं होता. एंड सेल्स पर्सन्स आर नाउ मींस उनका डेली रूटीन है, सो दे नो व्हिच कस्टमर्स आर ऑफ व्हिच कैटेगरी.
कौन सिर्फ टाइम पास करने के लिए आया है एंड हु इज केम टू परचेज द गुड्स। तो अकॉर्डिंगली वो लोग डील करते हैं। अगर उन्हें लगता है आप टाइम पास के लिए गए हो तो वो ज्यादा एंटरटेन नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर 10% भी लगता है नहीं ये खरीद सकते हो, देन 90% इनपुट वो डालेगा, अदरवाइज दे विल आल्सो लिव इट। ठीक है। नेक्स्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट इज मेजरमेंट प्रोसीजर। कैसे स्टार्ट करेंगे? टू इंडिकेट एग्जैक्टली व्हाट अपील और इमेज टू बी कम्युनिकेटेड। हम लोग का जो आइडिया है, आइडिया शुड बी क्लियर। The idea of your selling process should be absolutely clear. What are you going to talk? How much you are going to talk? ये मेजरमेंट प्रोसीजर है। इसीलिए आपने सुना होगा ना वो प्रोवर्ब, नाप तोल के बोलना चाहिए। अब ये नाप तोल क्या है? अभी मैंने बताया आपको, लीटर्स और केजीस में तो नाप नहीं सकते, है ना तो तोल सकते हैं। नाप तोल क्या होता है फिर? ये सी दिस मीन्स यस, सोच समझ कर, व्हाट आर वी स्पीकिंग, है ना, बिकॉज वर्ड्स आर लाइक एरोस, एक बार गया तो वापस से वो नहीं आएगा। तो इसीलिए whenever we are saying, especially when we are advertising, because once we have placed the advertisement, if you are given wrong mistakes or wrong commitment या false statements, once it has gone to the consumer, it has gone. अगर मैं बोल रही हूँ 100 रुपीज का गुड्स खरीदने पे 100 रुपीज का आपको फ्री मिलेगा, and if I have set this commitment in advertisement, then I will have to give it. I cannot change it. ठीक है। तो ये जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं वहां पर हमें क्या होता है, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। अगर मैंने कुछ स्टेटमेंट दिया है, अगर मैं फ्री गिफ्ट दिया है तो फ्री गिफ्ट मुझे देना ही पड़ेगा। इसीलिए जब भी हम लोग देखते हैं ये प्रमोशनल स्कीम्स, दे आर वेरी ट्रिकी, है ना। परचेज गुड्स वर्थ ₹3,000 यू विल गेट अश्योर्ड फ्री गिफ्ट। अब वो अश्योर्ड फ्री गिफ्ट 10 रुपीज का है या 10,000 रुपीज का है, दैट इज नॉट स्पेसिफाइड, बट यू विल अश्योर्ड यू विल गेट इट। तो हमको भी लालच आता है ना, अरे फ्री गिफ्ट मिलेगा, तो 3,000 का हम लोग गुड्स को खरीदेंगे। इफ द shopkeeper says, if you are purchasing goods worth ₹3,000 and you are going to gift of 1,500, उसमें क्या है, क्राइटेरिया डाल दिया उसने 1,500, that means the shopkeeper will have to give the gift of ₹1,500। उससे कम का फिर वो नहीं दे सकता। ठीक है। that is what is the measurement process. What you are offering is most important. Some of the recommended brand, sarcastic statements, drink it to believe it, है ना। तो इसमें क्या है, बिलीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रिंक करना पड़ेगा। ड्रिंक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, परचेज किया, दैट मीन्स एक्शन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट, ऑडियंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। हु इज गोइंग टू परचेज द गुड्स? ऑडियंस। तो हमें क्या करना है, सारे प्रोस्पेक्ट में से अपना टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट करने आना चाहिए। हु इज माय टारगेट कस्टमर? एज आई सेड यू, मार्केट में कितने सारे लोग पर डे एटलीस्ट 100 फुटवॉक्स होते होंगे, और वो 100 फुटवॉक्स से मेरे प्रोस्पेक्ट्स कौन है जिसको मैं बायर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो मुझे वो पता होना चाहिए कि मेरे टारगेट कस्टमर कौन है। रिटर्न गोल्स, गोल शुड बी ऑन रिटर्न गोल्स। रिटर्न गोल्स यानी कमिटेड गोल्स होना चाहिए, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ठीक है। व्हेन वी से कॉल सेंटर्स, कॉल सेंटर्स में क्या होता है, उनको रिटर्न स्टेटमेंट दिया रहता है, डायलॉग्स वगैरह रटाते हैं, स्पेसिफिक डायलॉग्स होते हैं, उनको वो रेपिटेटिव बोलना है। इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, देन दे विल फॉरवर्ड द कॉल टू द टीम लीडर्स, टीम लीडर्स टू मैनेजर्स, मैनेजर्स टू सुपीरियर्स, और फिर ऐसे ऐसे जाएगा जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा। अदरवाइज एक स्टोरी होती है स्क्रिप्टेड, वो स्क्रिप्ट देते हैं, उस स्क्रिप्ट को क्या करना है, बाय हार्ट करना है, रेपिटेटिवली बोलना है। ठीक है। सो गोल्स ऑलवेज शुड बी इन दी रिटन गोल। सी व्हेनेवर यू आर कम्युनिकेटिंग, अगेन you should also have written communication, as I said you so many times, especially when you're working somewhere, communication should be in written form, not in verbal form. वर्बल का कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, आप कहीं पे भी जाके क्लेम नहीं कर सकते। इसीलिए क्या करना है, हमें रिटर्न में ही लेना है। बेंचमार्क, ऑलवेज वी शुड फ्रेम अ बेंचमार्क।
what is my capacity, ठीक है, and how much I can work beyond my capacity. तो वो बेंचमार्क हमारे पास होना चाहिए. मेरे पास 24 आवर्स है, आपके पास कितना है? आपके पास भी 24 आवर्स ही है, सबके पास 24 आवर्स ही होता है, ठीक है. लेकिन क्या होता है उसमें, एक बेंचमार्क होता है सबका. इफ आई एम वर्किंग 4 to 4, ये मेरा बेंचमार्क है. आपको भी अपना क्या करना है, बेंचमार्क फिक्स करना है. some students they study for 10 minutes, some students they study for 1 hour, some may study for 4 hours, some may study for 8 hours. ये अपना अपना उन लोगों ने क्या किया है, बेंचमार्क सेट किया है. अब ये बेंचमार्क सेट कैसे करते हैं? बेंचमार्क हम लोग सेट करेंगे बेस्ड ऑन अवर गोल्स. जो आपने गोल सेट किया, इफ यू सेइंग दैट ओके आई वांट टू स्कोर A+, तो A+ के लिए आप 10 मिनट्स नहीं दे सकते हो खुद को, 1 आवर नहीं दे सकते हो खुद को. यू विल हैव टू गिव मोर देन 2 to 3 आवर्स, तब जाके आपको क्या मिलेगा, A+. तो बेंचमार्क के लिए आपको क्या करना है, पहले गोल सेट करना है, एंड आफ्टर दैट यू विल बी प्रूविंग योरसेल्फ. ओके, सो दिस इज व्हाट इज योर डेगमार. समझ में आया डेगमार मॉडल? ठीक है. So it is nothing but a communication objective to communicate to the customer, because communication advertisements में क्या है, advertisements में only thing is required is your communication, how good you are to communicate to your customer. बोलोगे तो बिकेगा, नहीं बोलोगे तो नहीं बिकेगा. वो पहले का टाइम था, जो दिखता है वो बिकता है, अब नहीं बिकता. अब जो बोलता है वो बिकता है, क्योंकि सबको पता है जो दिखता है वो फेक होता है. आपके रील्स है ना, व्हाट्सएप स्टेटस, आपका डीपी, तो अब सबको पता है जो दिखता है वो फेक होता है. तो जो बोलता है अभी वही बिकता है. ओके, जस्ट शेयर द स्क्रीन. किधर गए? What happened to the projector? Guys, share by Zoom. Able to see? सब लोग इंतजार कर रहे हैं. पापा समोसे खिलाते हैं कैसे कैसे? अरे नहीं, बस बस आपने पहले ही बहुत खिला दिया, हमें तो आपकी बाहर बहुत पसंद आई. सब पक्का सब. जी सर. लेकिन हमें तो आपके घर आना होगा. जी पर हमारी बेटी को भी देखना है कि आपका लड़का घर संभाल सकता है या नहीं, खाना बना सकता है या नहीं. तभी हम देख के अपनी लड़की. इससे तो पानी उबालना भी नहीं आता, बस कभी
समझा? नहीं समझा? I'll share the link of the video. कौन है ये? खान मुस्कान। See, कॉलेज बंद होने वाला है, नहीं होने वाला है, what you are supposed to do with that? आपके लेक्चर्स होने वाले हैं, be concerned about that. No idea, because no circular from university side, कहीं से भी circular नहीं है. Until and unless we get it, we cannot say anything. Pray कि नहीं होना चाहिए.